Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to study about electric field due to a point charge. Okay, what happens when we place a point charge in space? We can say in free space or in any medium. Then is there any field created due to it, or we can say any field lines or something as we study in case of magnet? Okay, yes, there is a field. If we place, we can say in electrostatics, when any electric charge or the point charge is placed at any point in the space, it produces a field around it, and it is called as electric field. And we can say that uh, how to we can say experience that field, how someone can measure that there is a field. Okay, so if we put another point charge near to that charged particle, then the other charged particle will experience a force. Fine, that charged particle will experience a force, and that indicates that there was we can say earlier there was an we can say an field ड्यू टू द अर्लियर चार्ज. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ यहाँ पे. इट विल बी मोर क्लियर टू यू. लेट अस से देयर इज अ चार्ज हियर एंड दैट चार्ज इज q. अब ये जो चार्ज है, इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड. Fine. But how to, we can say, justify that? So what you have to do, we can place another point charge, or we can say a test charge near to that, or we can say anywhere in the space. So there will be, as we know that as per the Coulomb's law, there will be a force between the point charge q, we can say the test charge, and the charge which is placed at this point. And if there is a force, that means there was something present before placing this test charge. यानी कि इस पॉइंट चार्ज को रखने से पहले कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी थी जो उस पे, जब जब हमने यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज रखा तब उस पे फोर्स लगाया जिसने. ठीक है, आप समझने की कोशिश करें. हाँ, तो इस पे देखो, तो वो क्या था, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक electric field. So that is electric field. So we can say, and why we are denoting the term, we can say it is at field. फील्ड का मतलब यही है कि यहाँ पे इसके चारों ओर जो भी एरिया है, मान लो जो भी जितना भी जैसे भी आप एरिया बनाना चाहो, कोई भी राउंड या सर्कल, जितना भी एरिया है उसमें इसकी जो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो प्रेजेंट है. सो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती है, उसके इन द एनी पॉसिबल डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी देयर फॉर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. और दूसरा अगर हम बात करें, सो वो मान लो कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, let us say negative charge is there, then the electric field lines will be towards the charged particle. तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो चार्ज की तरफ ही होगा. नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है उनका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द चार्ज. और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है उनका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द चार्ज. And what is the, we can say, the mathematical representation of the electric field? Let us say any charge is placed, any charge q is placed at the origin, we can say, and at some distance r, let us say this is distance r, any test charge is placed. Okay, any test charge is placed, then the force between them, the force between them will be F equals to
q into q times 4 pi epsilon naught r square into rk. this is the this इज द इक्वेशन ऑफ कुलम्बिक फोर्स. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो पॉइंट, लेट अस से हियर द पॉइंट चार्ज q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी E वेक्टर इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू r कैप. और r कैप यहाँ पे क्या है? इट इज द यूनिट डायरेक्शन वेक्टर. It is the unit direction vector. Let us say this point is O, since we are assuming it as origin. और ये पॉइंट अगर P है, let us say P पॉइंट पे हमने एक पॉइंट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल q जिसका हमने लिखा हुआ है. तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉइंट चार्ज Q, कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, तो वो कितना होगा? दैट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू r कैप. तो ये वाला जो पोर्शन है वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P बिकॉज ऑफ द चार्ज Q, ये वाले चार्ज की वजह से. और r कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P. ओके, along this direction the electric field will be there, and so on. We can say that electric field is a vector quantity. So electric field is a vector quantity and it follows the laws of we can say the vector quantities like addition, algebraic addition, and we can say the associative law and all the vector laws it follows. अब इसमें देखते हैं कि एक क्वांटिटी आई है, दैट इज 1/4 pi epsilon naught. It is the electrostatic constant and denoted by Ke, and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब. And the reason for that is we can see that the relation between force and electric field due to a point charge, as we can see, it is F, we can say F vector, it is Q times E vector, where E vector is the electric field and F vector is the force and Q is the test charge. That means जो यहाँ पे force लग रहा है, इस पॉइंट चार्ज Q पे जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज Q की वजह से, वो क्या है? दैट इज इस ये वाला जो पॉइंट चार्ज है उसका चार्ज इनटू इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? ई इक्वल्स टू F/Q. और F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द यूनिट, the SI unit of electric field is Newton per coulomb. Newton per coulomb is the unit of electric field. Okay. अगर हम कोई न्यूमेरिकल देखें तो किस तरीके से कर सकते हैं? लेट अस से कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा गया है, ठीक है. मान लो कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है एंड द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम. और हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो at a point which is, we can say, let us say there is a point P
which is which is which is at a distance 10 meters from it. 10 मीटर पॉइंट 10 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो Q का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ Q इज 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ and coulomb is the unit of charge. Okay, good. And what is the distance between the point charge and the point of interest at which we want to find out the electric field? It is 10 meters. So that is why we can say that R equals to 10 meters. Now let us apply the formula to find out the electric field. So it is, the value of Q is 2 into 10⁻⁻⁶, and the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, at is it is denoted above it, the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. So let us place the value 9 into 10 to the power 9, and what is the value of R? It is 10, and since it is R square, so it is in the denominator it is 10 square. और यहाँ पे यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? 2 into 9 is 18 simply, and the we can say the powers of 10 is -6 प्लस 9, और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो कितना पावर बचा है इसका? इट इज -8 प्लस 9, यानी कि 10 बस बचा है। तो इट इज 180 न्यूटन पर कूलम। 180 न्यूटन पर कूलम is the electric field at the point P. 180 न्यूटन पर कूलम is the electric field at the point P. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के केस में। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन भी बताना होता है। तो जब डायरेक्शन हमें बताना रहता है तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि अपना जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है और किस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। इन दोनों के हमें पोजीशन वेक्टर या फिर इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता रहने चाहिए, तब हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता पाएंगे। ओके, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है। ओके, द क्वेश्चन इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 microcoulomb is placed at point 1, 2 meters, and a point charge of 4 microcoulomb is placed at point 1, 2 meters in the फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से यहाँ अपना मतलब है वैक्यूम, यानी कि हम परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ही लेने वाले हैं। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, find the electric field at a point find the electric field at a point 2 4 मीटर। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाना चाहेंगे तो किस तरीके से बनेगा ये? लेट अस से वी आर अज्यूमिंग हियर
xy coordinate axis, because as it is given 1 comma 2 and 2 comma 4, so its representation in the coordinate axis will be such a way. Let us say this is y axis, fine, and this is x axis. This is x axis, this is y axis, and the point charge is placed at 1 comma 2. The coordinate, we can say the coordinates of the point charge is 1 comma 2. So this is the origin 0 comma 0 comma 0. So 1 comma 2 will be somewhere. Let us say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and 5, so on. And it is 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो जो 1,2 पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? इट विल बी हियर. तो अपना जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पे है? इस पॉइंट पे है, 1,2 पे. 1,2 पे है पॉइंट चार्ज. लेट अस से दैट पॉइंट चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू. और यहाँ पे जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दैट इज 2,4. तो 2,4 कहाँ पे होगा? इट विल बी 2 and 4, somewhere here at this point. Let us say this point is P, and इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं? 2,4 मीटर्स. इसका था 1,2 मीटर्स. तो हमें इसका जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से एट पॉइंट पी, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमें चाहिए ये रहेगा कि उसके बीच का जो डिस्टेंस कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और बाद में हम उसके डायरेक्शन वेक्टर को भी निकाल लेंगे आसानी से. सो द डिस्टेंस वेक्टर, और वी कैन से the magnitude of the distance between them is, we have to join these 2 points. Okay, we have to join the points. थोड़ा सा ये उस तरफ हो गया, लेकिन आप समझ जाओ कि this is the distance and the distance is r. Let us say it is denoted by r. तो हमें इसका यहाँ पे पहले वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. ओके, सो द डिस्टेंस विल बी r वेक्टर. सिंस हमें पॉइंट पी पे निकालना है, तो जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर 2,4 माइनस इस पॉइंट का जिस पे हमने चार्ज रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर 1,2. तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 4j कैप. ऑल दीज आर यूनिट्स आर इन मीटर्स, सो आई एम नॉट राइटिंग हियर. एंड इसका यूनिट जो पोजीशन वेक्टर वो क्या बनेगा? 1i कैप प्लस 2j कैप. यहाँ से आप आई कैप को आई कैप वाले कंपोनेंट से आप इसमें एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी लगाइए. तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 - 1 आई कैप प्लस 4 - 2 जे कैप. और ये कितना निकल के आया? 2 - 1 is 1, so it is not required to write. So I cap plus 4 - 2 is 2, so it is plus 2 j cap. This is the position vector of the, we can say, the distance between them. Okay, now we need to find out here r cap. R cap, then what is r cap here? To find out the r cap, we require the vector form of r upon divided by its magnitude.
So the magnitude, we as we know that it will be, first of all, let me write it its vector form, I cap plus 2j cap, and r vector here, we can say the magnitude of r vector is nothing but the square root of its component square, 1 square plus 2 square. So r cap is I cap plus 2j cap divided by 1 plus 4, and we can say that it is 1 upon square root 5 I cap plus 2j cap. This is the unit vector. Now, what is the magnitude of r? Since we have already find out, so we can directly write that the magnitude of r is r, the magnitude of r vector, it is square root 5 meters. Square root 5 meters. Okay. Now our task is to put the values in the equation of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने को पता है कि इक्वेशन क्या होता है. सो इक्वेशन है E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू R कैप. सो E वेक्टर विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q का वैल्यू हमें दिया हुआ है, दैट इज 4 माइक्रोकुलाम. तो 4 माइक्रोकुलाम का वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो इट विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एंड डिनोमिनेटर में बचा है आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर. चलो हम लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर, और आर कैप अपने पास कितना निकल के आया है, इट इज 1 बाई स्क्वायर रूट 5 टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप. और यहाँ पे आप इक्वेशन लगाएंगे तो अपने पास वैल्यू निकल के आएगा 9 इंटू 4 इज 36 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6, तो कितना बचा 3, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5, और ये वाला जो वैल्यू है इट इज स्क्वायर रूट 5. सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 इट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप. ठीक है. अब इसमें आप कंपोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट while you are solving any numerical question in, we can say, uh, any sort of numerical question. If you are solving, you have to mention the unit whatever you are finding out. स्पेशली फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन करते हैं, अगर आप यूनिट नहीं लगाते हैं तो आपके उस क्वेश्चन के जितने भी मार्क होते हैं उनके जो स्टेप मार्किंग होती है उनमें मार्क डिडक्ट कर लिए जाते हैं. ओके. और यूनिट का बहुत फर्क पड़ता है. अगर कोई यहाँ पे न्यूटन पर कूलम यूनिट लगा रहा है, दैट इज ऑल गुड. अगर यही यूनिट आप सीजीएस में अगर इसकी लगा देते हैं तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर देगी उसमें. जो 10 की पावर्स का जो फैक्टर होता है वो उसमें ऐड हो जाता है. ओके. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन सोल्व करें इसको आगे, तो वैल्यू निकल के आएगी ई वेक्टर इक्वल्स टू 36 इंटू 10 टू पावर 3 divided by 5. So it is simply, we can say, 36 into 10 to the power 2 upon 5 into square root 5. So I cap plus 2j cap Newton per coulomb. E वेक्टर इक्वल्स टू, अब 5 है, 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स 5 टाइम 5 2 10, और अगर आप इसको स्क्वायर रूट 5 है उसका वैल्यू आप रखेंगे तो 2.3
2.36 आप रख सकते हैं इसका वैल्यू 2.36। ओके, चलिए मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ कि इसका आंसर कितना बन रहा है। It is not 2.36, it is 2.236. I'm sorry, 2.236. Okay, so when we place the values, so it will be 36 into 2 divided by 2.236. It is 32.19, and it is multiplied with 100. So it will be 3.21. It is 3.219 into 10 to the power 3 I cap प्लस, सिंपली इसका डबल हो जाएगा, तो इट विल बी 6.439, 6.439 इंटू 10 टू द पावर 3 जे केप न्यूटन पर कुलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। E vector equals to 3.219 into 10 to the power 3 I cap plus 6.439 into 10 to the power 3 J cap, and the unit is Newton per coulomb. अब अगर आपको इसमें राउंड ऑफ करना है तो यू कैन डू अप टू 2 decimal places. So you will get the value, if you round off, it will be 3.22 into 10 to the power 3 I cap plus ये हो जाएगा 6.44 into 10 to the power 3 J cap Newton per coulomb. Okay. What will you do if they are asking the magnitude and direction separately? तब आप क्या करेंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है, तब आपको उसमें सेपरेटली बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, साथ में एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is making an angle with the x-axis, the positive x-axis. What is that angle? That angle will tell us the direction of electric field vector for that particular charge. तो वो हो जाएगा, let us say the magnitude of the electric field, simply what we'll do, it is the square root of sum of squares of the components. So it will be 3.22 into 10 to the power 3 squared plus 6.44 into 10 to the power 3 squared न्यूटन पर कूलम। अब जब इसका जितना भी वैल्यू आए, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एंड जो सेकंड है दैट इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन कितना होगा, मान लो कि अब यहाँ पे मैं इसी की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो इसके साथ जो एंगल बन पा रहा है, दिस एंगल थीटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्यू। तो वो कैसे निकालेंगे आप? सो फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ई वाई अपॉन ई एक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, इसका जो tan इनवर्स होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन। सो tan इनवर्स। अब अगर आप इसको पूरा वैल्यू ना रखना चाहें तो आप यहां से भी देख सकते हैं। ये ये वाला जो फैक्टर है दैट इज कॉमन फॉर ऑल this electric field, and the components of electric field along I cap and J cap are such as I cap plus 2 J cap, I cap plus 2 J cap. So it will be 2 by 1. So EY will be the component of we can say the coefficient of J cap is 2,
that means it is Ey, and the coefficient of I cap is 1. So it is theta equals to tan inverse 2. This is the direction of electric field vector for the given system of charge. अब आप इसका डिग्री में वैल्यू निकाल सकते हैं if you want further. If you are doing we can say solving for a competitive exam, then I hope there will be the calculator provided. The inbuilt we can say the online calculator will be provided. Otherwise, you can use some random, we can say, the values which you remember. So for me, it is 63.43 degrees. So theta equals to 63.43 degrees. 63.43 degrees. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अपना पॉइंट चार्ज था लेटेस्ट से, और ये वाला अपना पॉइंट था, पॉइंट पी, जो 2,4 था, और ये 1,2। तो इसके साथ जो हम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला इमेजिनरी एक्सिस मान लो, तो ये वाला जो एंगल बन पा रहा है, दैट एंगल इज 63.43 degrees. So that is how we can denote the magnitude with the direction of the electric field. I hope you got the idea, and you will be able to solve the different numerical problems related to the electric field. Still, if you have any doubt, then you can ask. I'll be happy to answer that. Thank you.